Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with new topic that is figures of speech. Today we are going to learn figures of speech. In this video we are going to learn what is figures of speech and meanings of the figures of speech and kinds of the figures of speech, and how we can use these figures of speech in the sentences. So first, what is figure of speech? A figure of speech is a rhetorical device that achieves a special effect by using words in a distinctive way. It means that the figures of speech is a phrase. Figures of speech is a phrase or word that has an implied meaning. And should not be taken at face value. And this means that the real meaning of such phrase differs from its literal meaning. Such phrases or words are called figures of speech. Since most figures of speech are used in English language widely in common places, today we are going to learn some of the important figures of speech in this video, in this session, and I hope it will be beneficial for you all and you enjoy the session and understood the topic. So let's start without wasting any time. First figure of speech that I have taken here, that is alliteration. And first, before starting the session, I would like to tell you that I have taken all kinds of figure of speech in alphabetical order. So it maybe you have seen the figures of speech, simile first, metaphor second, and personification third. तो मैंने क्या कि थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई किया और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लिया. एलिट्रेशन फर्स्ट लिया, फिर उसके बाद एनाफोरा, फिर apostrophe, like that. Okay, so don't be confused. All the types are here. That is important for you. Let's start. Alliteration is very important figure of speech in English language. When you are going through the poem, you will get this type of figure of speech. And what is alliteration? Alliteration is the repetition of an initial consonant sound. Alliteration क्या है? एक initial consonant sound का repetition. कैसे? जैसे she sells by the seashore. अब यहाँ पे देखो, सी में भी एस आया है, सेल्स में भी एस आया है, सी सेल्स में भी एस आया है, एंड सी शोर में भी एस है. और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट एस है उसका रिपीटेशन हुआ. जैसे मैं एक अनदर एग्जांपल दूं, बेटी बॉट बेटर बिट ऑफ बटर. यहाँ किसका हो रहा है रिपीटेशन? बी का. ठीक है, बेटी बॉट बेटर बिट ऑफ बटर. ओके गाइस, तो alliteration is the repetition of an initial consonant sound. ठीक है, I hope it is clear. Now come to the next, anaphora. The next figure of speech is anaphora. Anaphora, the repetition of same word or phrase at the beginning of successive clauses or verses. Anaphora क्या है? It is repetition of same word. ये repetition है किसका? Same word का. अभी तक किसका हम repetition देख रहे थे? Consonant का. लेकिन ये जब हम alliteration पढ़ रहे थे तो उसमें consonant का repetition हो रहा था. अब यहाँ पे anaphora में क्या difference है कि the repetition of same word or phrase at the beginning of successive clause or verse. Anaphora एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर सेम वर्ड रिपीट होता है, सक्सेसिव क्लॉज, जो आगे आने वाले क्लॉज या वर्ड्स हैं या लाइंस हैं, उसके अंदर वही वर्ड्स आपको अगेन एंड अगेन देखने को मिलेंगे.
दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। इसी को क्या कहा जाता है? एनाफोरा कहा जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। अब यहाँ कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? रॉन्ग। फर्स्ट कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। तो अब ये जो रॉन्ग वर्ड है, ये जो रॉन्ग वर्ड आपको दिख रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। ओके गाइस, तो जो ये वर्ड्स का रिपीटेशन है, सेम वर्ड का रिपीटेशन है, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज apostrophe. Apostrophe is a figure of speech in which we directly address a non-existing person or an inanimate object as though it were a living being. या हम किसी नॉन लिविंग पर्सन को या नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन को हम इसमें डायरेक्टली एड्रेस करते हैं और इसको एक लिविंग रूप के लिविंग बीइंग के रूप में हम एड्रेस करके अपना संबोधन करते हैं, इसे बताते हैं। जैसे ओ यू स्टूपिड कार, यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू टू, बट साई। बट इज ए पर्सन, he sighed, he take a long breath, he worried and said, oh you stupid car। अब stupid का कार stupid थोड़ी हो सकती, it is non living और इसको लिविंग बीइंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसको लिविंग बीइंग के रूप में संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज एपोस्ट्रोफी। ठीक है, जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, ओ मिल्टन दाउ आर्ट इज ऑलवेज लिविंग। ओके, so you can say this is called apostrophe। इसे क्या कहते हैं? apostrophe। this is kind of apostrophe figures of speech। okay guys, now come to the next is assonance। assonance is also very important figures of speech, and assonance is a figure of speech in which we give identity or similarity in sound between internal vowels in the neighboring words। जैसे कि आप एक स्टैंजा, एक लाइन है, उसके अंदर जो नेक्स्ट वर्ड नेबरिंग वर्ड्स आ रहे हैं उसमें इंटरनल जो वॉबल्स यूज हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, सिमिलरिटी देखना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हाउ नाउ ब्राउन काउ, हाउ नाउ ब्राउन काउ। अब यहाँ पे क्या है? वॉबल्स कौन सा, किसको आइडेंटिटी सिमिलरिटी मिल रही है? ये मिल रही है डब्ल्यू को। हाउ में भी डब्ल्यू आया, नाउ में भी डब्ल्यू आया, ब्राउन में भी डब्ल्यू आया और काउ में भी आया। तो यू कैन सी इट इज रिपीटेशन ऑफ द वॉबल्स इन द साउंड इन द वर्ड्स। ओके, I hope it is clear। Assonance is the repetition of the vowel sound। Okay, vowel letters। Next is hyperbole। इसको हाइपरबली भी बोलते हैं, बहुत लोग हाइपरबली कहते हैं, बहुत लोग इसको हाइपरबोल बोलते हैं। तो हाइपरबोल क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि हाइपरबोल, जो हम किसी चीज को बहुत हाइपरबोल करके बताते हैं, बहुत हाइपर करके बताते हैं, कि इसको बहुत एग्जैगरेटिव लैंग्वेज करके बताते हैं, डेकोरेटिव लैंग्वेज में हम किसी बात को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which an extravagant statement is given and the use of exaggerated terms। exaggerated मतलब decorated terms दिए जाते हैं for the purpose of emphasis और heightened effect। हम emphasis करने के लिए, emphasize करने के लिए या heightened effect देने के लिए, जितना उसकी वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा शो करने के लिए जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ओके गाइस, जैसे I have a ton of things to do when I get home। ton of things, you can imagine कि कितना हाइपरबोल इसको बता रहा है, कितना हाइपरबोलिक शो कर रहा है। I have a ton of things to do when I get home। Another example हो सकता है कि she have ocean of tears when she wept। जब वो रोई तो it was ocean of tears।
कैन यू इमेजिन, कहीं ओशियन ऑफ टीयर्स थोड़ी हो सकता, बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको एग्जैगरेट करने के लिए लैंग्वेज को, लाइन को, टर्म को हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, it is very important figure of speech, and mostly it is used in most of the poem or verses or lyrics. Metaphor. It is called metaphor. Metaphor is an implied simile. इसको an implied simile भी कहते हैं। जैसे कि simile क्या होता है, comparison between two things, ये भी comparison है, ये an implied simile होता है। An implied simile means it an implied comparison between two dissimilar things and that have something in common। तो dissimilar things को compare किया जाता है और इसमें एक पॉइंट कॉमन शो किया जाता है दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी all the word is a stage, all the word is a stage। अब वर्ड को कंपेयर कर दिया गया किससे, स्टेज से। जो दुनिया है इट इज जस्ट लाइक अ स्टेज, everyone comes and performs their role play and go, okay। तो all the word is a stage, ये क्या है, मेटाफर है। जैसे मैं बोलूं ये अमन इज हीरो ऑफ द क्लास, तो अमन का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया, हीरो से। अमन इज द हीरो ऑफ द क्लास, ठीक है। जैसे दशरथ माझी इज अ माउंटेन मैन, तो दशरथ माझी का हमने कंपैरिजन किससे कर दिया, माउंटेन से। हम डायरेक्ट उसको कंपेयर करते हैं, इंप्लाइड सिमिली कहलाता है, इट इज कॉल्ड मेटाफर, ओके। जब हम एक दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं और उसके अंदर एक पॉइंट को कॉमन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया, इसको बहुत लोग ओनोमोटोपोइया बोलते हैं, ठीक है, ओनोमेटोपिया। And this is the figure of speech in which we imitate the sounds associated with the objects or actions they refer to, ठीक है, sounds of any living creature or non-living things, ठीक है। The use of words that imitate the sound, हम ऐसे words को use करते हैं जो sounds को imitate करते हैं, associated with the objects or actions they refer to। Suppose that कि that tip of rain, example में you can see you can take the example tip of the rain। here is the example given, the clap of thunder means कि जो lightning होती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है, उसकी clapping से। the clap of thunder went bang and scared my poor dog। जैसे ही बिजली की गड़गड़ाहट हुई, मेरा जो डॉग है, पुअर डॉग, बेचारा कुत्ता, वो scared became fearful, डर गया, ठीक है। जैसे चीटर चैटर ऑफ द, जैसे चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, मियाउंग ऑफ द कैट। तो जब हम किसी के साउंड को इमिटेट करते हैं, उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपिया। कौन सा, ओनोमोटोपिया, ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द next is also very important figure of speech, that is oxymoron। it is called oxymoron क्या है, it is a figure of speech in which incourageous or contradictory terms appear side by side। या आप ऐसे कह सकते हैं कि दो contradictory words are used in a line। जब हम दो contradictory words को, दो opposite words को एक लाइन में ही यूज कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। क्या, जैसे मैं बोलूं कि सुगर इज स्वीट पॉइजन, जैसे चीनी हम खाते हैं ना, वो क्या है, स्वीट पॉइजन, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो अब यहाँ स्वीट और पॉइजन दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो स्वीट है जो मीठा, जिसको सप्लाई कर दे, पॉइजन कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल की he popped the jumbo shrimp in his mouth। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जंबो श्रिम्प, जंबो मीन्स होता है वेरी बिग और श्रिम्प मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जंबो श्रिम्प इन हिज माउथ, इज इट क्लियर। तो ऑक्सीमोरन क्या है कि दो अपोजिट वर्ड्स को जब हम एक साथ यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, उसी को हम ऑक्सीमोरन कहते हैं,
Okay guys, I hope it is clear. Next is paradox. Paradox is just similar to the oxymoron, but it give the another meaning. A statement that appears to contradict itself. एक स्टेटमेंट ऐसा जो अपने आप में इसका कॉन्ट्राडिक्शन होता है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, सैड एवरीवन ऑलवेज द पेसिमिस्ट. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द बिगिनिंग, कह रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग, ये शुरुआत है, ऑफ द एंड, किसकी शुरुआत है? एंड की शुरुआत. यहाँ बिगिनिंग बता रहा है और आगे एंड कह दे रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. एक तो पहले वो बिगिनिंग बता रहा है कि शुरुआत हो रही, और फिर बाद में ये कह दे रहा है कि एंड हो रहा है. ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना. एक तरफ हम बिगिनिंग बता रहे हैं, दूसरी तरफ एंड को शो कर रहे हैं. तो दिस इज दिस सच टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पैराडॉक्स. ओके गाइस, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. Personification is very important figure of speech in the sense of literature, and it gives a very effective meaning. A figure of speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with the human qualities or abilities. जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या ऑब्जेक्ट को उसको लिविंग थिंग ह्यूमन बीइंग के रूप में उसकी क्वालिटीज या एबिलिटीज के द्वारा शो करते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, जैसे दैट किचन नाइफ विल टेक अ बाइट आउट ऑफ योर हैंड इफ यू डोंट हैंडल इट सेफली. अब यहां देखो, दैट किचन नाइफ विल टेक अ बाइट. बाइट कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग लेते हैं. जब अपना फूड ईट करते हैं तो बाइट लेते हैं, लेकिन अब यहाँ नाइफ को बाइट लेते हुए बताया गया. तो नाइफ नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको एक लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह बता दिया गया, टेक अ बाइट. अगर आप सेफली नाइफ को यूज नहीं करोगे तो आपके हाथ में से एक बाइट ले लेगा, मतलब योर हैंड विल बी कट. इट मीन्स योर हैंड विल बी कट. ओके गाइस, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. ये पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. जैसे हम कहें कि द लाइफ इज वॉकिंग शैडो. अब लाइफ क्या, लाइफ थोड़ी वॉक कर सकती है. वॉक कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग वॉक करता है, लेकिन हमने लाइफ को क्या कर दिखा दिया? जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग. उसकी क्वालिटीज, उसकी एबिलिटीज को बता दिया. लाइफ इज वॉकिंग शैडो. तो यहाँ लाइफ को हम लोगों ने पर्सोनिफाइड कर दिया, उसको पर्सन के रूप में शो कर. ओके गाइस, एंड नेक्स्ट इज सिमिली. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन लिटरेचर. सिमिली क्या है? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, एंड हैविंग वन क्वालिटी कॉमन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द simile is always represented by as, like, so. As, like, so. इसके लिए हम तीन वर्ड यूज करते हैं, as, like and so. Simile क्या है? A stated comparison usually formed with like, as or so between two fundamentally dissimilar things that have certain qualities in common. कुछ certain quality जो होती है, क्वालिटी वो निश्चित रूप से कॉमन होती है. कैसे? He roared like a lion. He roared like a lion. वो रोर किया किसकी तरह? लायन की तरह. वो शेर की तरह दहाड़ा. इट मीन्स की क्वालिटी क्या कॉमन हुई? उसका दहाड़ना जो था वो बिल्कुल किसकी तरह था? शेर की तरह, लायन की तरह. ठीक है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किस वर्ड से किया? लाइक से. जैसे एज ब्लैक एज कोल. एज ब्लैक एज कोल, ये क्या है? हम एज वर्ड का यूज करके कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, द बॉय इज एज ब्लैक एज कोल, लाइक दैट. हियर इज एग्जांपल गिवन. रॉबर्टो was white as a sheet. बिल्कुल ऐसा व्हाइट था जैसे शीट ऑफ पेपर. आफ्टर ही वॉक्ड आउट ऑफ द हॉरर मूवी. white as a sheet. Okay, I hope it is clear. Now move to the next. Next is Synecdoche. Next figure of speech is Synecdoche. A figure of speech in which a part is used to represent the whole. जिस figure of speech के अंदर हम एक nominal part को, एक tiny part को use करते हैं उस पूरे whole object या thing को बताने के लिए, matter को बताने के लिए, topic को बताने के लिए. ठीक है,
तो जब हम कह रहे हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एक पार्ट को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बताने कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, होल, होल को। जैसे टीना इज लर्निंग हर एबीसी इन प्री स्कूल। अब एबीसी यहाँ यूज किया गया है, एबीसी मीन्स ही अल्फाबेट्स। टीना इज लर्निंग हर अल्फाबेट इन प्री स्कूल। अल्फाबेट के अंदर A to Z कोई भी लेटर आ सकता है। ओके गाइज, so this is synecdoche. This is called synecdoche. I hope all the figures of speech is clear to all of you, and you have enjoyed the session. And this is all for today. And we will meet soon again in the next session. Thank you. Thank you very much. Kindly like, subscribe, and share. Thanks a lot.